ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਬਈ ਦਿਲ ਤੇ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਣ, ਠੱਠੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਦੀ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ ਕਿੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਲਕਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਭਰੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਕਵੇ ਕਿ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਬਈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਆ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਖੁਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ, ਖੁਆ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਖੁਆ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੀਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤਸਲੀਮ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਉਹ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸਪੈਕਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕ ਆ ਜਾਣਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵਾਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਨਪ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਈਗੋ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਈਗੋ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਈਗੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸਤੀਆਂ 'ਚ ਈਗੋ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੜਾੜਾਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का एक नया व्लॉग, नया दिन और नया व्लॉग लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, अगर मुझे मेरी किसी बात को लाइक कर रहे हैं तो उनका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
और सुनाए, बस आज देखें मौसम कितना प्यारा है। उफ, इतना प्यारा मौसम हुआ है, इतना दुलारा मौसम। अल्लाह मियाँ का मैं तो इतना शुक्र करती हूँ, पाक परवरदिगार आप कितने सोने हैं कि इतने प्यारे प्यारे मौसम आप ला रहे हैं इधर, और लग ही नहीं रहा कि यहाँ सर्दी शुरू हो रही है। हमें लग रहा है कि जैसे समर शुरू हो रहा है। देखें कितनी प्यारी हवा चल रही है। मेरे बाल जो हैं पीछे उड़ रहे हैं, आपका नज़र आ रही होंगे। तो हम तो अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करते हैं, मोहब्बत भरा सलाम करते हैं अपने अल्लाह को, जिसने हमें पैदा किया और हमारे लिए इतने वन सवन्ने खूबसूरत मौसम लाए, फूल लाए, दरख्त लाए, शजर लाए, सब्ज़ा लाए, बादल लाए प्यारे प्यारे। ये सब अल्लाह मियाँ हमारे लिए यही तो कर रहे हैं, समझ गए ना। तो बस पिछले हफ्ते ज़रा काफ़ी मसरूफ़ रहे, आपको पता है पार्टी फूटी का चक्कर था। पार्टी तो अभी शुरू हुई है, पार्टी पुटी हो रही थी और पार्टी ख़त्म हुई तो आपको दिखाई दिया था कि पार्टी कैसी जा रही है कैसी नहीं जा रही। मगर मुझे पता है कि हमने सही तरह कवरेज नहीं की अपनी पार्टी की। क्यों? उसकी वजह पता क्या है कि उस वक़्त हम एक तो मतलब कुछ मेहमान जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे आ गए, और हम लोग जो थे, हम लोग अभी क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा थी तो तैयारी में थोड़ा सा वक्त हमें और चाहिए। ठीक 5 बजे हम बिल्कुल रेडी थे, ठीक 5 बजे। तो उस वजह से जब हमारे प्यारे दोस्त सारे आ गए तो फिर उन बेचारों को तो थोड़ी देर के लिए अकेले बैठना पड़ा, क्योंकि अंदर कोई नहा रहा था, कोई कपड़े बदल रहा था और कोई किचन में बिजी था। तो ये सारा सिलसिला है। बहरहाल पार्टी उस अफरा तफरी में ये हुआ कि जब हमने वो डिस्प्ले किए हैं सारे खाने, तो उस वक़्त नासर साहब को ख्याल रहा, मैं पता नहीं अंदर थी, अंदर से भेज रही थी सारी चीज़ें। फ़िज़ा और मोइज़ बाहर थे, वो डिस्प्ले कर रहे थे। लेकिन उस वक़्त व्लॉग किसी ने बनाए नहीं, क्योंकि असल में मज़ा तो उस वक्त आता है जब आप डिस्प्ले सारा करते हैं खाना और फिर आप दिखाते हैं सारे खानों को खोल खोल के ऊपर से, और फिर पता चलता है कि खाना कैसे डिस्प्ले हुआ, क्या 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 चीज़ थी। बहरहाल ये मूवी, ये जो व्लॉग बनाना है इसमें ये कमी रह गई, मुझे खुद भी एहसास है। मैंने जब कल व्लॉग देखा तो मैंने कहा उफ, ये चीज़ रह गई। लेकिन किसी को मैं मुअर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकती थी, क्योंकि उस वक़्त हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए हुए थे कि सब फटाफट फटाफट सेटिंग कर रहे थे कि हमारे जो दोस्त हैं उनको खाने के लिए 1 घंटा हो गया, आखिर घंटा 1.5 घंटे से बैठे हुए हैं। तो जनाब आपने व्लॉग देख लिया होगा, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। हमारे ये जो दोस्त आए हैं ना, ये कहते हैं कि हमें ना कवर किया करें, इसलिए हमने उनको कवर नहीं किया। और हमारा व्लॉग जो है, मेकिंग जो हम प्री मेकिंग कर रहे थे, सारा प्रोसेस हो रहा था, वो तो आपको दिखा रहे थे। लेकिन जब हम हमारे दोस्त आए हैं तैयार थे लोग, तो हम वो आपको नहीं दिखा सके, हमारी मजबूरी थी, क्योंकि वो कैमरा कॉन्शियस है ज़रा, या नहीं चाहते कि भाई व्लॉग बने हमारा उनके ऊपर। तो ये भी एक वजह थी। बहरहाल बड़ा अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। एक तो बड़ा अच्छा होता है, एक होता है बहुत अच्छा हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त व आबरू के साथ सारा कुछ कर दिया। मज़ा आया बड़ा, और खाने भी बड़े लजीज़ थे, बहुत लजीज़ थे। तो ऐसी पार्टियों से यही होता है कि एक दूसरे से प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है। हमारे इस्लाम में है कि आपस में मिलते जुलते रहा करो, कि मोहब्बतें बढ़ती हैं उससे। जो कोई गलत फहमियाँ भी छोटी मोटी होती हैं आपस में, उस पर भी डिस्कस किया करो। डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दरमियान गलत फहमियाँ हो गई हैं और आप डिस्कस नहीं करते आपस में, तो फिर वो बात जो है ना सॉल्व नहीं होती। इंसानी ज़हन ही ऐसा है, अल्लाह ने कुछ ऐसा ही ज़हन बनाया है। अब कोई ये कहे कि भाई खुद ही सॉल्व हो जाएगा तो मुश्किल होता है। सब लोगों की आदत वो नहीं होती
कि दिल को दुख भी पहुंचा हुआ है और साथ हम उन्हीं के साथ घुल मिल भी रहे हैं, ये नहीं होता। तो ये जो हम मिलते हैं सारे, ये हमारे इस्लाम का भी हुक्म है कि आपस में मिला करो, गलत फहमियाँ दूर किया करो डिस्कशन करके, तो मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। आपस में एक दूसरे को तोहफे दिया करो, इससे भी मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। तो बस हाँ, हम लोगों ने मुआशरती तौर पे ना कुछ हमारी मुआशरे में हमारी बुनियादें जो है ना कुछ मुतसलसल हैं। हम वो जो बचपन में चीज़ें देखते आए, वो चीज़ें जो पढ़ते भी थे, कभी कहीं कुछ लिखा होता सफाई निसफ अमान है, कहीं लिखा होता था उधार मोहब्बत की कैंची है, कहीं लिखा नेकी कर दरिया में डाल। मतलब कई चीज़ें हम पढ़ पढ़ के बच्चे उस दौर के ना जवान हुए तो हमारे अंदर वो चीज़ें आ गई। और एहसान का बदला बेहतरीन एहसान है, ये सारी चीज़ें लिखी होती थी शॉप्स पे। मुख्तलिफ शॉप वालों कईयों को शौक़ होता था कि हम लिखें, तो वो लिख के ना लगा देते थे ये सारी चीज़ें। तो हम लोग भी फिरते फराते कहीं कोई नज़र आ जाता था ऐसा कोटेशन, तो बचपन में पढ़ने का शौक़ होता है, आपको पता है कि किताबें नई नई आती हैं। जब नई नई किताबें आती हैं ना, तो उस वक़्त का भी आपको याद होगा कि जब किताबें आती थी तो सबसे पहले शौक़ होना कि किताबों को पढ़ना। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं पढ़ने लग जाऊँ किताबों को। उर्दू की किताब को मुझे इतना शौक़ था पढ़ने का कि उसमें आपको पता है कि ज़रा मज़ेदार सी किताब होती थी बचपन में, कहानियाँ या इस तरह। तो यही शौक़ होना कि फटाफट पढ़ने लग जाए। पर अम्मी जी ने कहना कि ठहर जाओ, उन्हें जिल्द ते करान दियो, फिर सारी किताबें जिल्द के लिए जानी। उस वक्त जिल्द साज भी होते थे, मुझे अभी तक याद है। शॉप्स होती थी जहाँ जिल्दें करते थे, गत्ते को काट काट के ऊपर लगाते थे लई से, और फिर इस तरह कपड़ा लगाते थे। मतलब सारी किताबों को जिल्द हो के आनी, और फिर हमने बड़े तरीके से ऊपर अपने नाम लिखने, नाम लिख के तो फिर बैग में डालने। वो बस्ता होता था उस वक्त, बैग ही थे, उसे बैग ही समझ लें, तो बैग में हम लोगों ने ना सालों डालना। तो इतना मुझे वो आज तक याद है कि पता नहीं अब भी बच्चे ऐसा ही करते होंगे, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, सारे एक जैसे ही होते हैं, तो वो करते होंगे। तो बड़ा ही अच्छा लगता था, बड़ा अच्छा लगता था वो। और जब हम बड़ी क्लासों में चले गए, कॉलेज में चले गए, तो उस वक्त भी किताबें हम लेके आते थे जब, तो उस वक्त भी किताबों को ना फिर हम खुद करते थे। वो क्या करते थे हम कि हम कागज़ उस पर चढ़ाते थे। हम खाकी कागज़ लेके आने, बड़े बड़े जो पीस होते थे खाकी पेपर, तो खाकी पेपर को फिर बड़े तरीके से उसको काटना और तरीके से उसको फोल्ड करना, फोल्ड करके अंदर हल्का सा उस पर टेप लगानी कि वो उखड़े ना। और इस तरह ना उन किताबों को भी मुझे याद है मैं कवर करती थी, कापियों को कवर करना कि कापियाँ नीट क्लीन नज़र आएँ बाहर से ना। तो स्कूल में ये भी एक दोस्तों में कंपटीशन होता था कि इसकी जिल्दें कैसी हैं, ऊपर कैसा कवर किया हुआ है। और कॉलेज में भी ये चीज़ें काफ़ी मतलब देखा जाती थी। राइटिंग में बड़ा ज़ोर होता था। मुझे याद है कि हमें बचपन में जब हम बहुत छोटे थे, कच्ची पक्की दूसरी तीसरी में ना, तो हमें अम्मी जी तख्ती पे लिखवाते थे। हम तख्ती पे हमारी इमला कराई जाती थी। एक कलम दुआत होती थी, स्याही बाज़ार से लानी बड़े शौक़ से, स्याही ला के वो टुकड़े टुकड़ों में स्याही ब्लैक होती थी, छोटे छोटे उसके ना चमकदार सी ऐसे जैसे पत्थर के टुकड़े हैं। और उन पत्थर के टुकड़ों में एक दवात होती थी, दवात में वो डालनी और डाल के पानी डालना और रात को रख देना उसे भगो के ना। तो कई लोग उसमें कपड़े की भी एक छोटी सी ना टुकड़ा डाल देते थे, और फिर उसमें ना ऐसे ऐसे करके कलम एक बनती थी। कलम जो है ये बांस, छोटे छोटे बांस जो होते हैं ना, उनकी कलमें होती थी जिनको ऐसे ऐसे तराशा जाता था इस चाकू के साथ, और उसकी आगे से नोब बनाई जाती थी कि कैसी नेब है उसकी, और वो बना के ना तो उससे ऐसे तरीके से लिखा जाता था। मुझे अभी भी देखे मेरा दिमाग उस पर चला गया। और फिर तख्ती जो होती थी वो लकड़ी की होती थी, और उस पे ना गाछी होती थी, गाछी कहते थे। एक मट्टी का ढेला होता था, वो बिकता था बाज़ार में।
वो जो चीकनी मिट्टी नहीं होती, बड़ी चीकनी मिट्टी जिसको कहते हैं, बहुत बेहतरीन मिट्टी, उसकी वो टुकड़े होते थे जो बाज़ार में हम पैसों से लाते थे। और फिर उस चीकनी मिट्टी से ना हम वो पोंछते थे, उसको पोछा लगाते थे, उस तख्ती को ना उसके ऊपर लेप लगाते थे। पोछा मीन लेप लगाते थे, पंजाबी च पोछा कहते थे। तो उसको फिर लेप लगाना, रात को सजो के रख देनी। सुबह जब छुट्टी होनी तो अम्मी जी ने पकड़ लेनी किताबें और कहना चलो आ जाओ, कलम तो हाथ पकड़नी और उसके साथ ही इमला लिखनी। उफ। और बचपन में तो मुझे याद पड़ता है, शायद जो पहली क्लास थी या कच्ची पक्की जो होती थी, उसमें भी हम लेके जाते थे और टीचर हमें अलफ बे पे उस पे लिखना हमें टीचर सिखाती थी। तो ये सारे सिलसिले उस वो बैग में रख के ले जाते थे, ऊपर से अच्छी तरह टाइट करके। और फिर पेन जब आए ना, एक फिर हम अभी तीसरी क्लास में थे कि दूसरी में थे, वो पेन आ गए थे। मतलब कच्ची पक्की में मैंने तख्ती का मुझे याद है, पहली में भी शायद अम्मी जी हमें इमला लिखाते थे, लेकिन दूसरी तीसरी मुझे याद है कि वो ईगल का एक पेन होता था। ईगल के पेन में फिर स्याही भी बिकती थी, बनी बनाई नीली रंग की ना स्याही। तो उसमें हम वो ईगल के पेन से ऐसे ऐसे करके स्याही, उसकी ट्यूब अंदर होती थी, उसमें भरते थे और फिर पेन को यूज़ करते थे। मतलब ये कलम दवात के बाद कि कलम दवात के साथ साथ ही पेन भी आ गया था। और पेन बल्कि एक पार्कर का पेन बहुत अच्छा समझा जाता था, और वो तो लोग तोहफा देते थे एक दूसरे को पार्कर के पेन का। और वो तोहफा इतना कीमती होता था वो पार्कर का पेन। डब्बे में एक पूरा एक डब्बा होता था, उस पर कपड़ा होता था बड़ा साटन का, कंपनी से फिटेड होता था, और उसमें उन्होंने लगाया होता था वो पेन और साथ कुछ और भी। वो गिफ्ट किया जाता था अपने दोस्त है बाप को, या कोई बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन ली लिया तो उसको वालिदैन गिफ्ट करते थे, क्योंकि बच्चों का ये शौक़ होता था कि हम जो है ना फर्स्ट आएंगे तो पार्कर हमारे पास होना है, क्योंकि पार्कर बड़ा शानदार पेन था। मुझे पार्कर याद है, लेकिन हो सकता है एक आध और भी कोई हो, मगर मुझे पार्कर अच्छी तरह याद है कि वो बड़ा ज़बरदस्त होता था। ਇਹ तो बचपन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। आओ ज़रा हमने एक सेब ही खा ਲਈ है, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ पता नहीं खट्टा ना होवे, ਮੈਨੂੰ डर लगता है। खट्टे भी होंगे ना, कई मिठे होंगे ने, कई खट्टे होंगे ने। ये लेते तो अब मैं सेब काटती हूँ, काट के तो ऐसी ये बचपन की जो चीज़ें हैं ना, ये हमेशा, ये देखें ना, तख्ती इस टाइप की होती थी। ये तख्ती समझने, इसके ऊपर वो हम लोग मिट्टी का लेप करते थे, मुझे अभी तक याद है। इसी टाइप यही तख्ती समझ लें, ये तख्ती होती थी ऐसे, और मिट्टी का लेप इस पर किया जाता था। बहरहाल वक्त वक्त की बात है, अब कहाँ वो वक्त रहे। अब तो जनाब ज़माने बदल गए, अब लिखता भी नहीं है शायद कोई, या बच्चे लिखते होंगे लेकिन वही पेन के साथ ही। दरमियान में वो पेंसिलें भी थी जो कच्ची पेंसिल होती है, पेंसिल भी हम यूज़ करते थे जब कापियों पे हम लिखते थे ना, तो वो पेंसिल भी यूज़ की जाती थी। तो इस वक्त लंच का टाइम चल रहा है, शाह बाबा भी लंच कर रहे हैं, अभी उन्होंने जाना है, और फिज़ा जान भी लंच कर रही है, सारे लंच लगे हुए हैं। मेरा लंच ख़त्म हो गया है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी तक उसी टाइप के ड्रामे चल रहे हैं। किस टाइप? बहू के उसमें जो है जहर डाल रही है। नहीं, बहू नहीं है, उसकी बेटी है। पता नहीं क्या बेटी है? चक्कर है, हाँ मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या। जादू टोना है कि पता नहीं क्या, मतलब तो बेटी कब इस चीज़ से जान छूटेगी समझ नहीं आ रही। कब जान छूटेगी बताएं। जान तो नहीं ना भाई छूटती है, तो टाइम लगता है जान छूटने में चीज़ों का। इससे पता चलता है कि अभी भी यहाँ से मिच्योर नहीं हुए हम। ये बड़ा ज़रूरी है ये mature टिश्यू होना। दीजिएगा ज़रा, थैंक यू। लिखा है कि उसकी बेटी बीमार है, अच्छा, और उसका जो मामू है वो बड़ा बुजुर्ग है, तो वो डिप्रेस है। अच्छा,
तो किसी पीर बाबे के पास गए, वहाँ से दम कराया है, और वो दम की जो पुड़ी है वो खिला रही हैं उसको रूह अफ़ज़ा में मिलाकर। रूह अफ़ज़ा में, अच्छा 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 अच्छा। कि कौड़ा दम ना निकल आए, मीठा मीठा जाए। व्यूवर्स आप देख रहे हो, शाह बाबा कह रहे हैं कोड़ा दम ना निकल जाए, मीठा मीठा जाए। मैं तो सास बहू वाले से जो है ना उससे तंग हूँ। पता नहीं आप कैसे शौक से उसको देखती हैं, मेरी समझ से बाहर है। नहीं, सास बहू का तो कोई ड्रामा नहीं मैं देखती। हम तो नहीं देखते वो। हमने तो मुद्दत तो ही छोड़ दी है बकवास। हाँ फिजा जी आगे से फूल परे करो। फिजा फूल मैंने कहा देख लूँ, ये फिजा फूल भी सामने ही देख लें व्यूवर्स। असल फूल। असल ये नकली था। तो आज तो वो घर पे ही हैं, वैसे कहीं जाना नहीं है क्योंकि काम शाम कुछ नहीं है नहीं। आपने फिल्म पे देखने जाना है? या फिजा फिल्म देखने के चक्कर में बैठी है। आई फिजा ने और मोहित ने ना व्यूवर्स फिल्म देखने जाना है। मैंने सबको कहा कि आप भी कोई फिल्म दिखा दें हमें। वो कह रहे हैं अच्छा हम भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। मैंने कहा आपको इधर ही एक हॉरर फिल्म की स्टोरी सुनाऊंगा। मैं सारे कमरों की लाइटें बंद कर दूंगा, एक मोमबत्ती जलाऊंगा और उसमें आपको स्टोरी सुनाऊंगा। आप बहुत एंजॉय करेंगे। देख लें ये क्या बातें कर रहे हैं। ये वो बंदा है। ऐसे माहौल में कुछ असर में आ जाता होता। मैं क्या बात कर रहे हैं, हमें हॉरर दिखा रहे हैं, हॉरर। शेरशान जी जा रहे हैं, जा रहे हैं। दांतों में फंस गया। ओहो फिर क्या करेंगे? खुरपी दे मतलब शपाटा वाले शपाटा मारो। चाहिए कोई चीज़? नहीं रहने दे। अच्छा निकाल लेंगे। चलो। ये जो है ना बचपन का जो तरीका है ना, बचपन का ये करके ये और ना करें इस वक्त, बचपन इससे कैमरे के सामने नहीं। व्यूअर्स को पता चले कि कितना शैतान बच्चा था। शैतान बच्चा, ये शैतान बच्चे थे बस। नॉटी बॉय। इनका बस जिंदगी में ये फलसफा है कि नोटी बने रहो बस। नहीं, खुश रहो। नोटी से खुश होते हैं। हाँ मतलब साइंसदान बस बन के खुश रहते इजादार। हैं। मेरा जो बड़ा भाई था वो भी नोटी तो था, लेकिन मेरी तरह नहीं। वो किस तरह खुश रहता था, वो ये एवे जो घंटी है ना, हाँ ये बजाय इसकी आवाज में थोड़ी कीं क्यों हो गया। हाँ वो पेचकस ला रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं, ऊपर चढ़ के घंटी खोल रहे हैं वो इंजीनियर और उसे था ना। ठीक कर रहे हैं, और उसी में उसे खुशी होती थी। खुशी भी होती। उस जमाने में वीसीआर होते थे। हम्म। अब वो फिल्म जो है चलते चलते ना उस पर लाइनें आनी शुरू हो जाती। आजत हिंदी आ गई तो। उसने कहा बैठो, वो 15 दोस्त बैठे हुए, सबको बिठा दिया, वीसीआर ही खोल दिया। और पता नहीं क्या किया, टिश्यू के ऊपर, रुई के ऊपर, ये नहीं होता ये जो स्प्रिंग्स है। नहीं यार, ये अब तो मैं सदियां हो गई हैं रेजर से यूज नहीं किया। वो जो लगाते हैं शेव करने के बाद, क्रीम शेविंग, नहीं आफ्टर शेव। आफ्टर शेव, वो उसने उस पे लगाया, रुई पे और उस पे, और वो हेड को साफ कर रहा है ऐसे ऐसे सीधा करके। रोल होता था ना वो हेड, और वो उसने जनाब उसको सुखाया, केसर डाली, मैं कह दूं साफ सुथरी। तो एक उसको तो उसमें खुशी होती नहीं, एक तो उन्हें खुशी होती थी, एक उनके अंदर इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा थी। हाँ, मतलब उसमें ज्यादा खुश रहता वो था। बाद में फिर मैं खेल कूद में या दोस्तों के साथ मस्तियों में ये इसमें खुश रहते थे, मैं इसमें खुश रहता। लेकिन वो जो है बाद में इंजीनियर बहुत बड़े बने। इंजीनियर बन गए थे। हाँ। वो उसमें जी टीवी इंग्लैंड का सारा सेटअप चीफ लगाते इंजीनियर थे। था वो। सेटअप लगाते थे उनमें, ये था कोई ओके चैनल जी, का। मैं चलता हूँ। जाए जाए जाए, खैर से जाए, खैर से मिलते हैं। जाए। शाह बाबा जो है ना इस वक्त अपने अंदर भागे हैं पानी लेने के लिए। पतझड़ का मौसम है, हवाएं चलेंगी तो पतझड़ भी आएंगे ना, वरना कैसे आएंगे? पत फिर ही झड़ेंगे ना जब हवाएं चलेंगी। इसलिए आज हवा काफ़ी चल रही है, मगर अभी पत्ते बड़े मजबूत हैं, अभी पीले नहीं हुए। पीले होंगे
तो फिर पत्तों का जो है ना सिलसिला गिरेगा नीचे। आ गए अच्छा बाबा, पानी रह गया था उनका अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। चाहें खैर से चाहें खैर से आएँ, अल्लाह की रहमतों में, अल्लाह की बरकतों में, अल्लाह की रहमतों में जाएं, अल्लाह की रहमतों में आएँ। ये जी जनाब वो बैठ के शाह बाबा जी ये गाड़ी स्टार्ट की उन्होंने और अब खैर से निकल गए। जल्दी में है क्योंकि उनका जो है ना स्कूल जा रहे हैं, ये जो ड्राइविंग स्कूल है ना ऑफिस, वरना तो ऑनलाइन पे ही सारा कुछ हो रहा होता है। तो कुछ कह रहे थे मैंने जाके वहाँ कुछ काम करना। ठीक है जनाब, मैंने कहा आपको सारा दिखा दूँ। ये हमारे फूल भी देखें, ये कितने मुरझा गए हैं बेचारे, येलो हो गए हैं, कई लटक गए हैं नीचे को। वो देखें वो भी लटका पड़ा है, वो वो सारे हमारे फूल भी जो है ना बेचारे लटक गए हैं। वो सामनों के फूल ये आपको शायद नज़र आ, ये देखें नज़र आया ना, ये अभी खिले हुए हैं भाई, फुल खिले हुए हैं ये फूल। फूलों से याद आया कि इंसान जो है ना वो भी फूल की तरह नाजुक होता है। थोड़ा सा दिल को ठेस पहुँचे ना तो साथ ही मुरझा जाता है। ये अजीब वैसी बात है, बहुत अजीब बात है। चलें अंदर चलते हैं। अब शाह बाबा तो चले गए, जाके नमाज़ पढ़ते हैं। ज़रा व्यूवर्स, नमाज की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला अल्लाह मियाँ से करते रहना चाहिए, और जो अल्लाह मियाँ कह रहे हैं उसको भी याद रखना चाहिए। ये है सिलसिले प्यार के। तो चलते हैं अंदर को। एकदम अंधेरा छा गया, पता नहीं क्या हुआ है। मेरा ख्याल है कोई भाई जरा बदल आ गया बड़ा ज़्यादा। बाहर ही बैठी है, फिर मतलब है जरा थोड़ा जिन्ना बाहर बैठनी है। चलो हाँ जी, बदल ही च ना बाहर एकदम देखिया थे, हुणे उठी हाँ मैं तो सो गई सा, काफ़ी सुत्तियाँ 2 घंटे तो सुत्तियाँ। जो हसत गए ना तो मैं लेट गई और सो गई और हुण उठी अल्लाह ताला का शुक्र अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह ने सुख ना सुआया। कहते खलूला जरूर लेना चाहिए, लेकिन यह खलूला बहुत लंबा 2-2.5 घंटे मैं सुती है। फिजा तो कहती है शायद मैं कंप्यूटर पर काम कर रही थी, लेकिन मैं जरा वे मैं सुती रही हाँ क्योंकि मैंने बड़ी थकावट हुई। कल इतनी दर्द, सारी रात में दर्द होती रही गर्दन ते ना, मैं सुती भी और उठ पई क्योंकि पीछे मेरे ना पट्ठियां में बड़ी दर्द हो रही सी। तो फिर अज सुबह मैं वॉक ही सिर्फ की थी, एक्सरसाइज की ही नहीं। तो हुण मैं जो सुती हाँ ना, हुण मैं सुकून जरा आया। मैं क्या बाहर देखा, सानू मैं आके बैठी हाँ तो देखनी हाँ कि बड़ी बारिश ही थोड़ी जिनी बारिश हुई, ये हवा बड़ी चलती है भी। मैं कहा चलो हुणे हसन साहब आ जाते हैं, हुणे आते हैं फिर देखते हैं। जेड़ा घर भी होंदा ना, देखो जेड़ा अल्लाह पाक ने सानू घर असीं सारे लोगों ने बना के दुनिया जेड़े भी आए हैं वो बैठे ने, यह घर भी बड़ी महफूज बना गाज है। हुणे मैं देख रही हाँ कोई काम तो आ रही है, कोई कुड़ी आ रही है छोटे बच्चे नूं अपने प्राम में पाया है, या कोई बड़ा बंदा गुजर रहा है। मैं देख रही हाँ कि किन्ना वो मौसम के बिना सख्ती तो दौड़ते घर पहुँचना चाहते हैं। घर वो तहफुज है जिहड़ा तुहानूं ना सिर्फ लोगों तो बचाता है, लोगों दी गलत निगाहां तो, लोगों की तारीफकारियां तो, बल्कि तुहानूं मौसमां की सख्ती तो भी बचाता है। मौसम जिहड़ा ना जो सख्त होता है तो उस वक्त तुसीं देखो तो तुहानूं पता चलता है कि मौसम कितना सख्त है। बस घर की जी नेमत है ना, उसका कोई जवाब नहीं है घर की नेमत। लो जी अच्छा देख लो अपने घर के तहफज जे होंगे ना, घर ही इंसान आके रिलैक्स होंदा है, कभी टीवी देखता है, चाय पींदा है और इंजॉय करता है। अच्छा साहब
असद साहब इधर भी ने ते असद साहब उधर भी ने ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਦੋ ਦੋ जुड़वा ਹਾਂ 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 ये फैसल है। ਇਹ ਫੈਸਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਸਲ ਨਾਲ ਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਧਰ ਵੀ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ एक ही एक्शन भी एक ही, ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ कपड़े भी एक ही। ਇਹ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਛੱਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੌਸਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਹਫਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਛੱਤ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਛੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਔਰ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਨ ਔਰ ਸਕੂਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ अच्छा ਫਿਰ ਫਿਜ਼ਾ ਜਾਨ ਔਰ ਮੁਏਜ਼ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ तो वो लेंगे उसको रिकॉर्ड ਹਾਂ ਫਿਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯੈਸ ਫਿਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੀ रिकॉर्ड करांगे और सारा डालेंगे और हम क्या करेंगे? हम मैंने तो कहा था कि अब गाड़ी बड़ी गाड़ी निकाल लें तो हम भी कुछ शक्ल लगाएं कहीं नहीं, बड़ी से क्या फर्क नहीं गाड़ी दूसरी बड़ी है बारिश हो रही है। नहीं बारिश वैसे नहीं है मैं काफ़ी देर खड़ी रही बातें करती रही हूँ साथ में नहीं तो इनको उतार देंगे तो फिर पिक भी करने हैं। अभी ये गाड़ी खोल ले जाना चाहते हैं अच्छा हाँ ये हमारे साथ नहीं जाना चाह रहे ये चाह रहे हैं कि हम खुद गाड़ी ले जाएं और खुद ले आएं ठीक है तो फिज़ा जान भी जो है और मोए जान दोनों जा रहे हैं खैर से जाएं तो मैंने शाह बाबा को इसलिए कहा है कि शाहजानू जी चलो हम भी चलें क्योंकि हम भी देखें जी कपल हैं कपल कपल जाए तो मज़ा आता है अकेला अकेला मुझे तो उन्होंने दावत दी थी बल्कि इनको भी कह रहे थे कि चलो सारे जाते हैं फिल्म देखने मैंने कहा नहीं तुम दोनों जाओ दोस्त हो फ्रेंडशिप भी तो होती है मियाँ बीवी में ना तो दोनों फ्रेंड जाएं इंजॉय करें तो ठीक है उनकी वीडियो भी साथ आ जाएगी जब तो आप तक सुबह पहुंच जाएगी तो असद हम अल्लाह हाफिज़ करते हैं मेरा ख्याल है उधर से अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी तरफ से भी फुल फ्लेज आपको सलूट है खुश रहें जिधर जिधर हैं अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमतें बरकतें करे और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल एक नया व्लॉग नए दिन के साथ अल्लाह की रहमतों के साथ हाज़िर खिदमत होंगे रात अल्लाह की रहमतों में बसर करें सुबह को अजाला भी अल्लाह की रहीमी के साथ शुरू हो अल्लाह हाफिज़ हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को शाहबाद फूफा ने बताया होगा कि मैं और मोएज़ ओ हेलो मैं और मोएज़ मूवी देखने जा रहे हैं लेकिन अब देखा मैं तैयार भी हुई हूँ मैंने अभी कपड़े भी दूसरे पहने हुए थे चेंज किए हैं। खैर हम मूवी देखने जा रहे थे लेकिन मोइज़ ने मुझे ऐसी वो अभी 2 अक्टूबर को मूवी रिलीज़ हुई है इंडियन मूवी है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी तो वो देखने जा रहे थे और मोइज़ भी मेरे साथ जा रहे थे और हमने देखा मोइज़ ने कहा सीटें तो देखो अभी 2 अक्टूबर को रिलीज़ हुई है और मैंने सीट्स देखी सारी बुक कौन सी पता कौन सी वाली थी सबसे आगे वाली जो आप ऐसे करके देखते हो ना वो वाली मूवीज़ पड़ी हुई थी वो वाली सीट्स पड़ी हुई थी और मोइज़ नीचे चले गए हैं पता नहीं क्यों मोइज़ नीचे क्यों चले गए हैं। खैर तो फिर मैं सैड हो गई क्योंकि जब प्लान चेंज होता था आपको पता सबका मूड ऑफ हो जाता है एकदम से। फिर मैंने कहा कि मोइज़ ने कहा चलो ऐसा करते हैं अगले ट्यूसडे चले जाएंगे क्योंकि एवरी ट्यूसडे यू हैव लाइक उनका ना सिनेप्लेक्स में ना ऑफ लगा होता है लाइक $10 की टिकट हुई होती है तो हमने कहा कि अगले ट्यूसडे चले जाएंगे तो आज हम खाना बाहर से ले आते हैं कुछ भी और अपने नेटफ्लिक्स पे अल्लाह ताला ने हमें इतना भरा टीवी दिया है तो अपने नेटफ्लिक्स पे बैठ के मूवी देखते हैं। तो मैं देखें ये ऑस्मोस लेके आई हूँ अभी मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। अब हम नेटफ्लिक्स से मूवी देखने लगे हैं फिर अपना डिनर लेके आए हैं। मोइज़ ने कहा मैं क्यों बाहर से लूँ कुछ जब मेरे घर पे मेरी जन्नत पड़ी हुई है। मोइज़ को मीठा बहुत पसंद है ये मोइज़ के गुलाब जामुन और रसगुल्ले ये मोइज़ के फ्रूट टार्ट्स उनके फेवरेट और मेरा ऑस्मोस। ये सर जी भी आ गया मेरे लिए बर्फ़ लेकर। सर जी बता रही और कमरे में इसमें ना प्याज है आई गेस और बहुत तेज़ प्याज है आजकल मार्केट में गए बहुत तेज़ प्याज आ रहा है वेरी तेज़ प्याज। हमारे घर में भी जो प्याज आए हुए इतने तेज़ हैं काटो ऐसे आंखों में जाता है और किसी चीज़ में डालो भी तो आपको पता चलता है कि प्याज जला हुआ है ना मोइज़।
तो अब हम मूवी लगाने लगे हैं, कोई देखते हैं कौन सी। मुझे इंडियन मूवी तो आप पे आती है। फिजा तुम अपने पे जाओ ना, अच्छा तुम्हारा अकाउंट है, अपने अकाउंट पे जाओ। मेरे व्यूअर, ये गाइस मेरे अकाउंट को इसने खराब करना होता है। मैंने इंग्लिश खराब अपनी कैसे चीजें होता की होती हैं, खराब कैसे होता रेकमेंडेड चेंज हो जाता है ना। है? ये देखें पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा कुछ देखा है हमने? पिज़्ज़ा क्या होता है पिज़्ज़ा? ये देखें मोइस, हाँ, ये देख, ये कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन ये सीरीज है, 7 एपिसोड है। ठीक है, ये देखो। गाइस हम ये देखने लगे जो आर्यन खान का है, शाहरुख खान के बेटे का। एनिमल तुमने Animal देखी ही है, देखी हुई है हमने। क्रू भी देखी हुई है, नहीं बकवास मूवी। ये क्या हुआ गाइस? ये मेरा नेटफ्लिक्स क्रैश हो रहा है आजकल, पता नहीं क्यों। और जो टीवी वाला नेटफ्लिक्स है उसकी तो आवाज़ ही नहीं होती सर। सर ने सारा कुछ अपने एक्सबॉक्स पे सेट किया हुआ है, टीवी जाए बाहर लेकिन में। वो नेटफ्लिक्स आजकल खराब हो गया है, पता नहीं क्यों। चलने लगाते हैं, हमारी मूवी लग गई। और ये मोइस मेरे टेबल इधर कर रहे हैं। और ये हमारा, ये मोइस की मिठाई और टार्ट्स, ये मेरा ऑस्मोस कोक, मोइस का पानी। दिखाएं अपने टार्ट्स। ये वही हैं जो उस पार्टी पे जो थे। ये मेरा ऑस्मोस खोल के दिखाएंगे? नहीं, मजाक करते होते हैं कभी कभी, माइंड नहीं करते होते हम। ओह माय गॉड, मेरा बड़ा फल तो खाए ना। नहीं मैं वो सर के लिए वो जन्नत है, मीठा। चले नहीं नहीं, टिड इतना हो गया मेरा। इतना नहीं एक्सपोज करना। ये अब हम मूवी देखने लगे हैं। Osman, just 2 minutes. Please work. Bhai.